بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى أحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. Dear audience, حاضرین محفل، سامعین حضرات، یہ شجرہ نسب نامہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک کا 23واں پارٹ ہے، یعنی یہ شجرہ نسب کی 23ویں کڑی ہے. اس میں آج کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت حنظلہ علیہ السلام کو پیغمبری کیسے عطا ہوئی. حضرات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھانجے حضرت یوشع علیہ السلام وصال کرنے کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے غرار عرف نماز، ان کے بیٹے معاذ، ان کے بیٹے یاسین، ان کے بیٹے حضرت الیاس علیہ السلام ملک سامرا، جسے آج لبنان کہا جاتا ہے، اس میں تولد ہوتے. اسی شہر سامرا کے اندر ایک بادشاہ جس کا نام تھا اخی، اور اس کی بیوی کا نام تھا بال، بڑے آن بان شان کے ساتھ بادشاہت کر رہا تھا. لیکن یہ بادشاہ جو تھے اور عوام جو تھی سب بت پرست تھی، کیونکہ حضرت میلہ علیہ السلام کی اولاد نے جب بت پرستی شروع کی پتلا بنا کر کے میلہ علیہ السلام کا، اس کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے بھانجے سامری نے جو بچڑا بنایا، تب سے بت پرستی شروع ہوئی. تب سے لے کر کے بنی اسرائیل جو تھے، موسیٰ علیہ السلام کا دین، یوشع بن نون نے جو کہ دین کی تبلیغ کی، دین پھیلایا، وہ سب کے سب بت پرستی میں کنورٹڈ ہو گئے، سب کے سب بت پرستی میں مائل ہو گئے. تو یہ بادشاہ اخی جو تھا بت پرست تھا، اور یہاں پورے شہر سامرا کی، پورے شہر لبنان کی جو تھی عوام جو تھی سب بت پرست تھی. اسی شہر کے اندر حضرت الیاس علیہ السلام تولد ہوتے ہیں. الیاس علیہ السلام کی ہونیسٹی، آپ کی رسپانسبلٹی، آپ کی لائبلٹی، آپ کی پنکچوالٹی کو دیکھ کر کے تمام عوام، تمام لوگ بہت ہی امپریسو تھے، بہت ہی متاثر تھے. آپ بہت ہی نرم دل انسان تھے، بہت ہی نرم دل شخص تھے. گویا کہ رفتہ رفتہ حضرت اسی الیاس علیہ السلام کی تعریف، توصیف پورے ملک سامرا میں چرچے ہونے لگے. بادشاہ اخی جو تھا، اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کے لیے دربار میں بلوایا اور آپ سے گفتگو کی. تو حضرت الیاس علیہ السلام نے کہا، کیوں بلوایا آپ نے؟ تو بادشاہ اخی کہتا ہے، میں نے آپ کی تعریف سنی ہے. بیکاز یو آر اے ایڈمائریبل، یو آر اے ڈیوریبل، یو آر ویری ہانیسٹ. آپ بہت ہی ایماندار ہیں، بہت ہی تعریف کے لائق ہیں. تمام عوام، تمام پبلک آپ کی تعریفیں کر رہی ہے. تمام پبلک سے امپریسو ہو کر کے، متاثر ہو کر کے میں نے آپ کے لیے بلایا ہے، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی ایمانداری، آپ کی پابندی، آپ کی ذمہ داری کو دیکھ کر کے وزارت کا قلمدان آپ کے ہاتھ میں دے دوں.
चुनाचे हजरत ये इलियास अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जी सोला जैसी मर्जी आपकी। तो गरज बादशाह अखी जो था वो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के लिए वजीर मुंतखब कर देता है। बादशाह अखी की बादशाहत और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की वजारत के तमाम मुल्कों में चर्चे होने लगते हैं, क्योंकि इतनी ईमानदारी और इंसाफ के साथ आप बादशाहत कर रहे थे। तमाम मुल्कों में आपके चर्चे होने लगते हैं। गरज बादशाह की बीबी जिसका नाम बाल था, बाल, उसने एक बुत सोने का बनवाया, 4 मुंह का, और उसका नाम अपने नाम पर रखा। अपने नाम की मुनासिबत से उसका नाम बाल रखा बुत का, और अहले अरब को तरगीब दी कि तमाम लोग इस बुत की पूजा करें, इस बुत की परस्तिश करें। गरज बादशाह फरमान जारी कर देता है पूरे शहर के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर कि ये लाल बुत है जो खुदा है हमारा, इसकी तमाम पब्लिक इसकी पूजा करे। इसी दौरान हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के लिए पैगंबरी अता होती है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और फरमाते हैं अल्लाह ताला आपके लिए वही भेज रहा है और फरमा रहा है कि आप अल्लाह ताला के नबी हैं और खुदाबंद कुद्दूस की वैधानियत का तर्स दें। जो भी तालीम है अल्लाह ताला की उसके लिए लोगों तक पहुंचाएं, लोगों में बयान करें। अलगरज हजरत इलियास अलैहिस्सलाम लोगों के लिए खुदावंद कुद्दूस की तालीम का दर्स देते हैं और लोगों को समझाते हैं, लोगों ये बुत परस्ती छोड़ दो और खुदावंद कुद्दूस की जो कि वाहदहुल्लाह शरीक है उसकी इबादत करो, उसकी प्रेयर करो, उसकी इबादत और रियाजत करो। सबसे बड़ा मालिक वही एक है, बुत परस्ती छोड़ दो। जब ये बात बादशाह के लिए मालूम होती है तो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के लिए दरबार में बुलवाता है और कहता है यू हैव बीन सस्पेंडेड, आप सस्पेंड किए जाते हैं वजारत से, मिनिस्ट्री से, क्योंकि आप अपने आप को नबी बताते हैं और उस खुदावंद कुद्दूस के आप तालीम पेश कर रहे हैं। हमारा बुत जो है इसके लिए आप भूल रहे हैं, लोगों में बगावत पैदा कर रहे हैं। चुनाचे हजरत इलियास अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आप मुझे क्या मुअत्तल करेंगे, आप मुझे क्या सस्पेंड करेंगे। आई हैव बीन रिजाइंड, मैं इस्तीफा देता हूं, मैं इस वजारत के लिए छोड़ता हूं खुशी से। चुनाचे हजरत इलियास अलैहिस्सलाम वजीर की पोस्ट छोड़ करके अवाम में अल्लाह ताला की तबलीग देते हैं, खुदावंद कुद्दूस की वहदानियत का दर्स देते हैं, लोगों को समझाते हैं कि ऐ लोगों अल्लाह ताला वाहदहुल्लाह शरीक है, वही इबादत के लायक है, वही परस्तिश के लायक है। चुनाचे आप शहर शहर दर बदर भटक रहे हैं, वजारत के पोस्ट से इस्तीफा दे देते हैं। 3 साल के बाद आप फिर शहर सामरा में आते हैं और फिर लोगों के लिए तबलीग देते हैं। बादशाह फरमान जारी कर देता है अखी के इलियास अलैहिस्सलाम के लिए जहां देखो वहां कत्ल कर दो। चुनाचे बादशाह के दर से आप दर बदर शहर ब शहर फिर रहे हैं। गरज आप बादशाह को चैलेंज करते हैं कि ऐ बादशाह अगर तेरा खुदा सच्चा है तो तू कुर्बानी दे या हम कुर्बानी देते हैं। जिसकी कुर्बानी अल्लाह ताला जो खुदावंद कुद्दूस कबूल कर ले वो हक पर है। कुर्बानी का सिस्टम ये था कि जिस जानवर की कुर्बानी दी जाती थी उसे एक मैदान में रख करके दोनों फरीक और अल्लाह ताला से गिरफ्तारी करते थे, दुआ करते थे अल्लाह जो हक पर है उसकी कुर्बानी कबूल कर ले। तो एक बिजली एक चमक जैसी आती थी, जिसकी कुर्बानी कबूल होती उससे जला करके चली जाती। गरज
हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की तरफ से और बादशाह अखी की तरफ से कुर्बानी पेश की जाती है। खुदावंद कुद्दूस से हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल होती है और बादशाह की कुर्बानी कबूल नहीं होती। गरज हजरत इलियास अलैहिस्सलाम एक ज़ईफा के यहाँ रहते थे, उसका बेटा था जिसका नाम अल ईशा था। उस ज़ईफा के बेटे के लिए अपना नायब, अपना उत्तराधिकारी, अपना खलीफा बना करके आप खुदावंद कुद्दूस का हुक्म होता है कि आप बहरोबर 7 समंदर के पास आप यहाँ से चले जाएं और वहीं आप इबादत करें और आपकी उम्र इतनी बसी कि जब तक सूर फूंका जाएगा कयामत तक आप हयात रहेंगे। तो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम समंदर बहरोबर में इबादत कर रहे हैं। चुनाचे आप अपना अपना नायब बनाकर अलीशा के लिए छोड़ गए थे। खुदावंद कुद्दूस की तरफ से अब हजरत अलीशा पैगंबर बनते हैं, वो दीन की तबलीग करते हैं। हजरत अल ईशा के बाद में अल्लाह ताला हजरत हंजला के लिए पैगंबरी अता फरमाता है, जिसमें हजरत हंजला के लिए पैगंबरी अता हुई। उस शहर में एक बादशाह था तैफूर नाम का। तो हजरत यूशा बिन नून से लेकर के और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के जमाने तक और अल ईसा तक 700 साल तक कोई मरा नहीं था। उस शहर में किसी की मौत नहीं हुई थी बादशाह तैफूर के यहाँ। तो हजरत हंजला जब पैगंबर बनते हैं, अल्लाह ताला की वही नाजिल होती है। खुदावंद कुद्दूस फरमाता है कि है हंजला, हमारी लोगों तक जो भी वहदानियत का दर्स है लोगों तक पहुंचाएं। चुनाचे हजरत हंजला जो है पब्लिक में खुदावंद कुद्दूस का दर्स देते हैं और फरमाते हैं कि आए लोगों, अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, ये बुत परस्ती छोड़ो। गरज बादशाह तैफूर जिसने 700 साल तक मौत नहीं देखी थी, किसी की मौत ही नहीं हुई, तो हजरत हंजला तबलीग किया करते थे। शहर के चारों दरवाजों पर रात रात पर आप चीख चीख के लोगों को बुलाते थे, आए लोगों, वो उस वादहुल्ला शरीक की तरफ आओ, मैं अल्लाह का नबी हूँ। रात रात भर आप जो है लोगों के लिए बुलाया करते थे। खुदावंद कुद्दूस के हुक्म से शहर में 1000 आदमी मर जाते हैं। पब्लिक जाके बादशाह तैफूर से कहती है कि 1000 आदमी मर चुके हैं, जिन्होंने 700 साल हो गए आज तक मौत का मुंह नहीं देखा। तो बादशाह तैफूर कहता है ये हंजला की बद्दुआ का असर है, क्योंकि रात रात पर दरवाजों पर चीखते हैं, अपने खुदावंद कुद्दूस की तरफ बुलाते हैं, आराम नहीं करने देते, सोने नहीं देते। उन्हीं का असर है, उन्हीं की आवाज, आराम नहीं देने देते, इसी का उन्हीं का गलबा है जो आदमी मर चुके। हजरत हंजला फिर बादशाह तैफूर के पास जाते हैं और फिर खुदावंद कुद्दूस का दर्स देते हैं कि तू देख, खुदावंद कुद्दूस की वहदानियत के लिए तस्लीम कर और मैं उसका नबी हूँ, और देख मौत एक बरख आनी है, एक दिन मौत जरूर आनी है। तो इस बादशाह तैफूर ने एक बहुत ही बुलंद किला बनवाया और उसमें 12,000 बुर्ज लगाए और हर बुर्ज पर एक सिपाही मुंतखब किया नंगी तलवार लेकर, और उसी में एक इंडोर एक हाल बनवाया और उसमें तख्त डाल के बैठा और कहता है देखे अब मौत आए कैसे आ सकती है, मेरे बुर्ज पे जो सिपाही हैं कत्ल कर देंगे मौत का, और ये इंडोर है, हाल है, इसके अंदर मौत दाखिल नहीं हो सकती क्योंकि कोई जगह ही नहीं है इसको घुसने की। गरज इसने एक हाल बनवाया था शीशे का, जिसमें हवा तक पास नहीं होती थी। तख्त पर बैठा हुआ था कि अचानक सडनली हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आ जाते हैं। बादशाह तैफूर कहता है हु आर यू, आप कौन हैं? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आई एम मलकुल मौत, मैं मलकुल मौत हूँ।
बादशाह कहता है हाउ केम, क्यों आए? तो मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आई केम देयरफॉर आई टेक योर सोल, मैं इसलिए आया हूं कि मुझे तेरी रूह कब्ज करनी है। बादशाह तैफूर कहता है मुझे एक दिन की मोहलत दी जाए, इसकी मौत में अभी एक दिन बाकी था। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम छोड़कर चले जाते हैं। बादशाह तैफूर अपने सिपाहियों की तंबी करता है, एंग्री होता है कि मौत दाखिल हो गई मेरे महल के अंदर और तुमने मारा नहीं। तो सिपाही सोल्जर कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा, वी डोंट वांट इन अबाउट इट, हम इस मौत के बारे में कुछ समझे ही नहीं, हमें पता ही नहीं कब मौत आई, कैसे आई। इसने फिर तमाम किले का मुआयना कराया तो पता लगा एक बारीक सा सुराग था, तो इसने वो सुराग भी बंद करा के बहुत ही खुश होता है, ही इज ग्रेट वेरी हैप्पी, बहुत ही खुश था अपने मन में कि अब मैंने सुराग था आने का मलकुल मौत का वो भी बंद करा दिया। गरज अगले दिन हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम फिर आ जाते हैं, इसके सामने खड़े होते हैं। ये कुछ कहना चाहता है कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम इसके मुंह में हाथ डाल के इसकी रूह कब्ज कर लेते, और जो इसके 12,000 सिपाही जो बुर्जों पर थे सबके लिए एक ही हाथ में सबकी रूह कब्ज कर लेते हैं और एक ऐसी चीख मारते हैं जिससे कि वहां की नहरें, नदी, तालाब, जो पानी था सब खुश हो गया। गरज तमाम तैफूर की बादशाहत बर्बाद हो जाती है, तमाम शहर बर्बाद हो जाता है, तमाम पानी खुश हो गया, बारिश नहीं हो रही है। पब्लिक हजरत हंजला के पास आती है और कहती है कि ऐ हंजला, आप जो है अपने खुदा से ये कहत साली दूर करा दें, ये हम पर जो अजाब नाजिल हुआ है इसके लिए दूर करा दें तो हम आप पर ईमान लाएंगे, आपके खुदा के लिए हम कबूल कर लेंगे कि वो वादहु ला शरीक है, सिर्फ हमारे ऊपर से ये इल्जाम, हमारे ऊपर से ये अजाब हट जाए। हजरत हंजला अलैहिस्सलाम खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, गिरियोजारी करते हैं। अल्लाह जल्ल शानो उनके दुआ के लिए ग्रांट करता है, दुआ के लिए एक्सेप्ट करता है, अजाब मौकूफ होता है, बारिश होती है, नहरों, तालाबों में, नदियों में पानी हो जाता है बदस्तूर। लेकिन ये कौम नाफरमान थी, एहसान फरामोश थी, अजाब टलने के बाद में फिर ईमान नहीं लाए। ये कौम कबीलों में मुतफर्रिक, कबीलों में बट गई। जहां के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुल्क शाम से जो ताबूत सकीना छीन करके लाए थे, कबाले अमाल का फिर से वहां उरूज पकड़ते हैं, और ये बनी इसराइल जो थे सब के सब मुतफर्रिक, सब के सब छोटे छोटे टुकड़ी में बट गए, तमाम इत्तफाक इत्तेहाद खत्म हो चुका। कौम अमाल का जो शाम के अंदर थी वो फिर से उरूज पकड़ती है और वो इस बनी इसराइल पर चढ़ाई कर देती है और जंग होती है, बनी इसराइल को डिफीट हो जाती है, हार होती है, कौम अमाल का के लिए विक्ट्री हासिल होती है, फतहमंदी हासिल होती है, और वो कौम थी वो जो ताबूत सकीना था उसे भी छीन करके ले जाती है। ताबूत सकीना ले जाकर के उसमें कुफरे लगे हुए थे, तो ये खजाने के लालच में उसे तोड़ते हैं, खोलते हैं, लेकिन कुफर नहीं खुला। तोड़ना चाहा इन्होंने लेकिन टूट नहीं सका, जलाना चाहा इन्होंने लेकिन ताबूत सकीना जल नहीं सका, क्योंकि उसमें बुजुर्गों के तबर्रुकात थे। गरज ये बेबस होने के बाद में ताबूत सकीना जो था वो एक बिल्ली की शक्ल का था, उससे एक बिल्ली जैसी आवाज आती थी। जंग के दौरान, लड़ाई के दौरान उसे बीच में हायल कर दिया जाता तो बिल्ली जैसी आवाज निकलती थी। उस आवाज से जो भी मुखालिफ फौजी हुआ करते थे सब हैबतज़दा हो जाते थे और सब के सब जंग भूल करके इतने खौफजदा, इतने हैबतज़दा हो जाते थे, अपने आप हथियार फेंक दिया करते थे। इसलिए
उनके लिए हार का मुंह देखना पड़ता। तो ये ताबूत सकीना भी छीन ले गए कबीला अमालका वाले मुल्क शाम के लिए। जलाना चाहा नहीं जला, तोड़ना चाहा नहीं टूटा। इन्होंने इस ताबूत सकीना के लिए इतनी गलीज ऐसी गंदी जगह पर डाल दिया था ले जाके, उसकी बेअदबी बेहुरमती होने लगी। अल्लाह ताला के हुक्म से तमाम कबाइले अमालका जो है मरने लगे। उन्होंने कहा ये ताबूत सकीना का असर है जो हम पर बला नाजिल हुई है। उन्होंने इस ताबूत सकीना के लिए एक बैलगाड़ी में रख करके बैलों के लिए हाँक दिया था, छोड़ दिया था। उस ताबूत सकीना के लिए अल्लाह के फरिश्ते मुल्क गनीम, वहां पर एक शख्स था तालूत नाम का, उसके मकान के आगे छोड़ करके फरिश्ते चले गए। हजरात, यहां तक का वाकया ये पार्ट नंबर 23 में हमने बयान किया। अगले पार्ट में अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह ताला पैगंबर शमूएल के लिए पैगंबरी कैसे अता हुई और ये तालूत बादशाह कैसे बना, ये हम बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हजरत, हमारे कहने का मकसद फिर वही है, हम फिर आपसे कहेंगे कि हमारा बार कोड है, इसे आप स्कैन करेंगे तो हमारा चैनल खुल जाएगा, निजामुल कादरी बदायूं, ये हमारा चैनल है। इस चैनल के लिए खोलिए और ज्यादा से ज्यादा इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपसे बार बार कह चुके हैं, आई हैव सेड टू यू, बार बार कह चुके हैं कि इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए शेयर करें, जिससे कि लोगों के लिए मालूमात हो सके। क्योंकि ये शजरा नसबनामा बतौर एक तारीख इस्लाम के हम पेश कर रहे हैं, लोगों को इसकी जानकारी हासिल हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात के लिए विराम देता हूँ, अपनी अल्फाज के लिए अपनी अल्फाजों का इख्तिताम करता हूँ। वाखिरु दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।